Now, final accounts of a non-manufacturing entity. Final accounts of a non-manufacturing entity. I'm waiting for all to join, and at the same time, I'm kicking out those whose cameras are off. Okay, everyone. Look, this final accounts, we have two chapters in our textbook. One is final accounts of non-manufacturing entities, and the other is final accounts of manufacturing entities. आपने 11th में जो लर्न किया था ना 11th स्टैंडर्ड में, that was final accounts of non-manufacturing entities. मतलब we were not manufacturers, we were traders. We are talking about final accounts of traders. ये लोग बनाते नहीं थे, ये लोग डायरेक्टली खरीदते थे और बेचते थे. ज्यादा से ज्यादा ये छोटे पैकिंग करके फिर बेच देते थे. तो दे वुड बाय इन लॉट्स, do packings in small lots, and then they used to sell it. So we are now talking about final accounts of traders. In FYJC, Maharashtra board, we have done final accounts of a trader. In SYJC also we did final accounts of a trader only. But in FYJC we did final accounts of a sole trader, a single owner. In SYJC we did final accounts of a partnership firm, but again they were traders. They were not manufacturers. ठीक है ना? So what I am trying to tell you here is, what I am trying to tell you here is, फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ ट्रेडर हम कर चुके हैं, ये वही है.
we don't have partnership final accounts. We have final accounts of a sole proprietor either doing trading business or a sole proprietor doing a manufacturing business. So हमारे पास फाइनल अकाउंट्स है, दो चैप्टर्स है फाइनल अकाउंट्स के. एक में है सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, यानी इट्स अ सिंगल ओनरशिप बिजनेस. बट एक फाइनल अकाउंट्स वो है जिसमें ही इज एक्टिंग एज अ ट्रेडर. ही इज डायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. ही इज नॉट मेकिंग गुड्स एंड देन सेलिंग. ठीक है. एंड द अदर चैप्टर दैट वी विल डू इमीडिएटली आफ्टर दिस, देयर आल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, यानी a single ownership wala business. But in that chapter we will be talking about a business where he will be a manufacturer. First he will make the product and then he will sell it. यहाँ पर कुछ लोगों को मैंने एक दो बार बाहर निकाला, वापस आ गए, लेकिन कैमरा ऑन नहीं है. बेचारे इतने अनाड़ी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है. फिर ऐसा होगा मैं परमानेंटली बाहर निकाल दूंगा. हालात की नजाकत को समझिए, नहीं तो हालात की लात पड़ेगी. Now listen, let's proceed. So final accounts of a non-manufacturing entity. We are talking about a business, single ownership business, sole proprietorship business, but he is doing a trading business, directly buying and selling goods. Now, what do you know about final accounts? आपको मालूम है क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है, एडजस्टमेंट दिया होता है, और हमको सॉल्व करने के लिए बनाने का क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. कैपिटल अकाउंट बनाने का है तो बनाओ, वरना कैपिटल को बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिख दो और एड लेस कर दो. दिस इज व्हाट योर जनरल इंप्रेशन अबाउट फाइनल अकाउंट्स इज. बट डोंट यू थिंक when you prepare final accounts, you are preparing trading account, profit and loss account, balance sheet. Now, trading account and profit and loss accounts are accounts, so they must be in the ledger. And balance sheet is not an account. Balance sheet is a statement. So it is neither a book of prime entry nor a secondary book. It is just a statement, balance sheet. But trading account and profit and loss accounts are accounts, and accounts are in the ledger. एंड कोई भी चीज लेजर में पहले रिकॉर्ड होती है कि पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होती है? एनीथिंग इज फर्स्ट रिकॉर्डेड वेयर? इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, देन इट गोज इनटू द लेजर ना. सो वेयर आर द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज? डायरेक्टली लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऐसा? नो, इट कांट बी, पॉसिबल ही नहीं है. अंडरस्टूड? लुक, मैं आपको सिंपल बात बोल रहा हूं. आप जब इतने सालों से फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो, आप डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बट अकाउंट तो लेजर में होता है ना. और लेजर में कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं जाती है, पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जाता है, फिर वहां से लेजर में पोस्टिंग होता है. इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स की भी जर्नल एंट्रीज होती होंगी. होती होंगी, ऑब्वियस है. यस और नो? फाइनल अकाउंट्स का भी जर्नल एंट्री तो होता ही होगा. चलो, आई आस्क यू सम बेसिक क्वेश्चंस. ट्रायल बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस और नो? नो. ट्रायल बैलेंस इज नाइदर अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री नॉर अ सेकेंडरी बुक, यानी वो लेजर भी नहीं है. ट्रायल बैलेंस थोड़ी ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट है. ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से निकाला गया एक इंफॉर्मेशन है. इट्स अ लिस्ट.
extracted from the ledger. It contains the name of all the accounts that are in the ledger and along with their balance. तो ट्रायल बैलेंस क्या है? वो तो एक लिस्ट है जो लेजर में से निकाली गई है. ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट ही नहीं है. अच्छा, टेल मी, बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स? यस और नो? नो, बैलेंस शीट नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्या है वो? क्या वो बुक ऑफ प्राइम एंट्री का पार्ट है? क्या वो लेजर का पार्ट है? पहली बात तो वो लेजर अकाउंट ही नहीं है. बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट. So what exactly is the balance sheet? What is the final accounts का journal entries? Let's understand that now. आपको final accounts आता होगा, हो सकता है. You may be expert in final accounts. Someone told me balance sheet is a financial statement. Fine. Even trading account, profit and loss accounts are also called financial statements. Financial statement includes trading profit and loss and balance sheet. Sorry. The point is, trading account, profit and loss account is part of your books of accounts. It is there in the ledger. These two accounts are there in the ledger. Okay, it's all right. ठीक है? But balance sheet is not a part of books of accounts. It's neither a part of the ledger, neither is any part of any book of prime entry. तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आपको फाइनल अकाउंट्स आता हुआ सॉल्व कर रहे हैं. यू मे बी एक्सपर्ट, बट फिर भी आपको बहुत सी चीज मालूम ही नहीं है फाइनल अकाउंट्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही नहीं मालूम फाइनल अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज होती है, और जर्नल एंट्रीज का जब पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तब लेजर में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है. ओके, this is the last warning, Osama. After this, you will be permanently removed from today's session. क्या करना क्या चाहते हो? बार बार कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ, कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ. क्या करना क्या है? ऐसा हाइड एंड सीक खेल रहा है ओसामा का तप्पा, ऐसा बोलूं मैं? क्या कर रहा है पागल? Okay, so final accounts, let's understand it. Open your minds. सबसे पहले, a transaction takes place. As soon as a transaction takes place, it is immediately recorded in the books of prime entries. ठीक है? There are 9 books of prime entries. Purchase book, purchase return book, sales return book. Everybody alert, इधर उधर नहीं देखना है, मेरी तरफ देखो, मेरी ओर, बस बहुत हो गया भाई. आगे बढ़ने का, सुनने का, समझने का, देखने का. तो जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है, देयर आर 9 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज एंड यू हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन ओनली वन ऑफ दोज 9 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज. द 9 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज आर परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, bills receivable book, bills payable book and journal proper. Out of that bills receivable book, bills payable book, ये बुक्स आपको कभी सिखाई नहीं गई है अभी तक. 12th में भी बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक नहीं सिखाई गई थी. और जब किसी ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट बुक नहीं बनाते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है? जर्नल में. तो इसलिए उन्होंने आपको डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज ही सिखा दी बिल ऑफ एक्सचेंज की. सो 12th में भी आपको बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक पढ़ाया नहीं था. और जब उसके लिए सेपरेट बुक नहीं बनाते हैं, तो उसकी एंट्री जर्नल में करनी पड़ती है. इसलिए उन्होंने आपको डायरेक्टली जर्नल एंट्री सिखा दी. डू यू गेट दैट? एक्चुअली उनकी भी अलग बुक होती है. सो देयर आर 9 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज एंड यू आर फेमिलियर विद 7 ऑफ देम.
whenever a transaction takes place, you don't have to record in all these 9 books or all these 7 books. You have to record in one of the books of prime entries. That depends upon the nature of the transaction as to which book it will go. Once it is going into the books of prime entry, from there it is posted into the ledger. उसके बाद वो जाएगा ledger. Is that okay? Sharma, quiet. From there it is posted into the ledger. Now ये सब कार्यक्रम जो है ना पूरे साल चलते रहता है, because in every year lakhs and lakhs of transactions take place. Each transaction first goes into the books of prime entries, then it is posted into the ledger. तो ये कार्यक्रम पूरे साल चलता रहेगा. At the end of the year, all the ledger accounts are balanced. And then from there, we prepare a list of all the balances. And that list is called a trial balance. After this, we start scrutinizing the books of accounts. उसको हम लोग ऑडिट में लेजर स्क्रूटिनी वर्ड से जानते थे. ठीक है, पूरे बुक चेक होता है. अब आपको कैसा लगता है कि ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट है, हो गया फाइनल अकाउंट्स, ये दोनों की मदद से. बट एडजस्टमेंट आपको देगा कौन? आपको एडजस्टमेंट देगा कौन? बाजू वाला आके बताएगा कि तेरा इतना ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, ये एक्सपेंस प्रीपेड है. नहीं, बाजू वाला आके बताएगा क्या? नहीं. तो रेडियो पे आएगा, रेडियो मिर्ची पे नहीं. तो कहां से मालूम पड़ेगा क्या एडजस्टमेंट्स है? तो लेजर स्क्रूटिनी होता है. क्या होता है? लेजर स्क्रूटिनी. पूरे लेजर का चेकिंग होता है. अब सैलरी अकाउंट है, उसमें 11 एंट्रीज दिख रही है. हर महीने एंट्री करते हैं पेमेंट करते वक्त, 11 एंट्रीज दिख रही है. तो मालूम पड़ रहा है कि अरे लास्ट मंथ का सैलरी अभी भी पे नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है. बराबर है. तो ऐसे करके पूरा पूरा एक एक एक्सपेंस का एक एक इनकम में आपको मालूम पड़ता है. अभी इंश्योरेंस है, तो आपने साल में कभी भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, तो इमीडिएटली पॉलिसी निकालो. अकाउंटेंट को बोलने का, अकाउंटेंट क्या करेगा? ही विल ओपन द पॉलिसी कि अरे ये जो पेमेंट किया इंश्योरेंस का, दैट कवर्स व्हाट पीरियड. तो पता चलेगा सम पीरियड इज फॉलिंग इन द नेक्स्ट ईयर, तो चलो उतना प्रीपेड है. ऐसा हर एक एक्सपेंस, हर एक इनकम में चेक करना पड़ता है. एनीथिंग इज आउटस्टैंडिंग, एनीथिंग इज प्रीपेड, एनीथिंग इज प्री रिसीव्ड इनकम. ये हो गया वो. फिर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन कौन कौन से एसेट का क्या रेट पे करते हैं उसकी एक लिस्ट निकालते हैं. फिर पर्सनल अकाउंट्स पे आते हैं. जो डेटर का अकाउंट है, एक एक एंट्री चेक होती है. अरे ओपनिंग बैलेंस से लेके क्लोजिंग बैलेंस तक एवरी एंट्री इज चेक कि ये बिल है, उसका तो पेमेंट आ गया है. ये जो हमने सेल्स उसको डेबिट किया है, सामने ये जो क्रेडिट हुआ है बैंक, तो ये अमाउंट मैच कर रहा है, तो ये इसका पेमेंट आ गया है. कभी कभी पता चलता है बहुत जूना पेमेंट बाकी रह गया है, तो फिर हमको इंक्वायरी करनी पड़ती है कि वो उसके बाद के बिल के पेमेंट हो गए, उसका पेमेंट क्यों नहीं हुआ है. कभी कभी पता चलता है अरे सेल्स रिटर्न की एंट्री नहीं की है, वो माल वापस आ गया था. कभी कभी ऐसा होता है कि वो माल डिफेक्टिव था, इसलिए बॉस से उसने फोन पे बात करके रेट्स कम करवा दिया था, इसलिए उसने कम भेजा है, इसलिए अपने को लगता है अभी भी उसका थोड़ा पैसा वो जूने बिल का बाकी है. तो ये सब बहुत डिटेल में चेक करना पड़ता है. कोई ऐसा भी डेटर होगा जिसका बहुत जूना बैलेंस है और उसके बाद उसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ना ही पैसा है, तो फिर वी विल हैव टू इंक्वायर वेदर इट इज एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी अ बैड डेट, है ना. और वी विल ऑल टू इंक्वायर कि बेड डेप्स भले ही नहीं है, बॉस को लगता है पैसा कभी ना कभी आ जाएगा, बट डाउटफुल है क्या. तो ये सब नोट डाउन करते रहना पड़ता है. एंड देन वंस ऑल दीज थिंग्स आर डन, लुक 31 मार्च को अगर मेरा फाइनल अकाउंट्स बनाने का लास्ट डे है, माय फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 31 मार्च के दिन ही फाइनल अकाउंट्स बनता है. ईयर एंडिंग में भी 31 मार्च फॉर अकाउंटिंग पर्पस, बट डज नॉट मीन कि 31 मार्च को रात को 12 बजे से पहले फाइनल अकाउंट्स बन जाना चाहिए. नॉट पॉसिबल. 12 बजने नहीं दूंगा, चल घड़ी के सेल निकाल दे, ऐसा होता है क्या? नहीं. कभी कभी फाइनल अकाउंट्स बनाते बनाते आफ्टर 31 मार्च
इट मे टेक 1 or 2 months, 1-2 महीने बाद फाइनल अकाउंट्स बनता है जाके, इतना काम है उसमें। अपने को तो 40 मिनट्स लगता है फाइनल अकाउंट्स के लिए। बट समटाइम्स एक्चुअल लाइफ में 40 मिनट्स नहीं, 40 डेज भी लग सकता है। लहर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग। यस मैडम लहर, आस पार किसका कहर। अगेन स्टार्टेड टॉकिंग, तो सॉरी बोलने का फायदा क्या। यश भैया डिस्टर्ब कर रहे। Okay, now listen importantly. So what I am trying to say is कि sometimes है ना, कई बार मार्च हो गया, अप्रैल में कोई बिल आता है 20 तारीख 25 तारीख को, तब पता चलता है ये तो पिछले साल का बिल था, तो ये इसका मतलब अभी आया है बिल, अभी पे करने का, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये, है ना। कई बार ऐसा होता है। So all these things, say you just gather information, and gathering information will take so much time. And once all these are done, then we have adjustment and closing entries. So adjustment entries and closing entries hoti hai, and with the help of these entries final accounts is prepared. So let's learn some adjustment entries. Some adjustment. I'm not teaching you how to deal with trial balance. Trial balance की कौन सी चीज ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, है ना, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। आई एम नॉट बॉदर्ड, यू नो इट वेल इनफ. सो लेट्स गो फॉर एडजस्टमेंट एंड क्लोजिंग एंट्रीज. एडजस्टमेंट एंट्रीज, चलो bad debts, or say let's start it systematically. Outstanding expenses, also known as expenses in arrears, and also known as expense payable. ठीक है। नाउ ये करंट ईयर का एक्सपेंस है जो अभी तक पे नहीं हुआ, बट एक्सपेंस तो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर के एक्सपेंस में उसको डालना पड़ेगा डेबिट ऑल एक्सपेंस, एंड इट इज आउटस्टैंडिंग, यू हैव टू पे टू समवन। तो आपको जिसको भी पे करना है वो आपका क्या बन गया, क्रेडिटर। और जब कोई क्रेडिटर बने उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। जैसे सैलरी आपको वर्कर को पे करना है, तो सैलरी अपना एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, सैलरी डेबिट, और वर्कर को पे करना है तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया, तो वर्कर क्रेडिट। अंडरस्टूड। यार लैंडलॉर्ड को रेंट चुकाना है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, मुझे रेंट लैंडलॉर्ड को देना है तो लैंडलॉर्ड बिकम्स माय क्रेडिटर, तो मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूँ। तो मुझे पार्टी को क्रेडिट करना है। हाउएवर मैं पार्टी को क्रेडिट करने के बदले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट करूंगा। तो कोई अगर आपको पूछे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, क्या बोलोगे आप उसको। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अभी भी तो मैंने बताया पार्टी के नाम के बदले उसको लिखा है। तो कोई आपको पूछे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, क्या बोलना है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल नहीं है वो। एक्सपेंस वर्ड आया, नॉमिनल, ऐसा थोड़ी ना होता है।
ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एक्सपेंस पेएबल या अरियर्स ऑफ एक्सपेंस वो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। आई जस्ट गिव यू एग्जांपल्स, राइट? मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया कि मुझे रेंट पे करना है लैंडलॉर्ड को, तो रेंट मेरा एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और मुझे लैंडलॉर्ड को देना है, लैंडलॉर्ड बिकम्स माय क्रेडिटर, तो मुझे लैंडलॉर्ड को डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट सॉरी करना चाहिए, बट मैं उसको क्रेडिट करने के बदले आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट कर रहा हूं, बट एक्चुअली तो लैंडलॉर्ड क्रेडिट होना चाहिए था ना। सो दिस इज अ पर्सनल अकाउंट, दिस रिप्रेजेंट्स अ लायबिलिटी आई हैव टू पे टू समवन। इज दिस क्लियर? बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। क्या है? पर्सनल अकाउंट का भी एक टाइप होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, दिस रिप्रेजेंट्स सम पर्सनल अकाउंट। याद रखिए, इस बात पे तवज्जो दें। So outstanding expenses which account? Representative personal account. ठीक है? प्रीपेड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस पेड इन एडवांस, तो वो करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए उसको करंट ईयर के एक्सपेंस में से हटा दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। एक्सपेंस नॉर्मली डेबिट होता है, तो उसको रिवर्स कर दो, बिकॉज वो करंट ईयर के एक्सपेंस नहीं है, उसको करंट ईयर के एक्सपेंस में से हटाना। ठीक है? और जिसको भी हमने एडवांस दिया है, हमको उससे कुछ ना कुछ वापस लेना है, तो वो हमारा क्या बन गया? डेटर। एंड जब कोई डेटर बनता है हम उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो जिसको भी मैंने एडवांस दिया है वो पार्टी मेरा डेटर बन गया, मैं उसको डेबिट करूंगा, लेकिन मैं उसको डेबिट करने के बदले प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट नाम से डेबिट कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली वो पार्टी का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, उसके बदले मैंने प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट किया है। तो अगर कोई आपको पूछे प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा अकाउंट है, रियल, नॉमिनल या पर्सनल? करेक्ट, पर्सनल अकाउंट। स्मार्ट गाइज मुझे बोल रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सही फरमाया, उम्दा, आई मीन फाइन, गुड। It's a representative personal account. It represents a personal account. Got that? प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट नहीं, एक्सपेंस नॉमिनल है, मैं प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। थर्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम रिसीवेबल और इनकम इन अरियर्स। ये इसी साल की इनकम है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, बट इनकम तो इसी साल का है। क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स इस साल की इनकम में गिनी है, और हमको किसी से ये इनकम लेने का है। लेने का मतलब वो बंदा हमारा क्या बन गया? बोलो भाई, क्या बन गया? डेटर। और जब कोई डेटर बन जाए तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो मुझे उस बंदे को डेबिट करना है, लेकिन मैं उस बंदे को डेबिट करने के बदले आउटस्टैंडिंग इनकम डेबिट कर रहा हूं। आई एम डेबिटिंग आउटस्टैंडिंग इनकम। सो इफ समवन आस्क्स यू आउटस्टैंडिंग इनकम इज व्हिच अकाउंट, so I have actually replaced that party account with this account. So this is a representative personal account. ठीक है? Now just a second.
Yeah, sorry. Next is pre-received income, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो पहली बात तो वो हमारी इस साल की इनकम नहीं है, तो इस साल की इनकम में से हटाना है। वैसे हम इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, बट नाउ आई हैव टू रिमूव दैट इनकम। तो इंस्टेड ऑफ क्रेडिट आई विल हैव टू डेबिट इनकम, करेक्ट, एंड आई हैव रिसीव्ड इट in advance from someone. So from whomsoever I have received this in advance, I will have to give that person something in return. If I have received in advance, I have to give something in return. And if I have to give, that party is my what? Creditor. And when a person becomes creditor, you have to credit that person. But instead of crediting that person, if I write pre-received income, instead of person, I have written this. So again, if someone asks you pre-received income is which account, it's a representative personal account. Clear? Next. अच्छा, now, you know what happens? आपको लगता है एक्चुअल लाइफ में इनर कॉलम होता है, इनर कॉलम में प्लस या माइनस होता है? ना जी, ऐसा होता ही नहीं है। एक्चुअल लाइफ में फाइनल अकाउंट्स में इनर कॉलम जैसी कोई चीज ही ना हो, जहां प्लस। एक्चुअल लाइफ में जर्नल में ये एंट्री पास होगी, जर्नल प्रॉपर में, फिर लेजर इसका पोस्टिंग होगा। अब पोस्टिंग होगा तो एक्सपेंस डेबिट होगा। ऑलरेडी एक्सपेंस शोज डेबिट बैलेंस एंड यू फर्दर डेबिटेड, तो एक्सपेंस का अमाउंट बैलेंस बढ़ जाएगा। आप क्या करते हो, इनर कॉलम में ऐड आउटस्टैंडिंग करके बढ़ाते हो, बराबर ना? बट एक्चुअली वो इनर कॉलम में ऐड नहीं हो रहा है, वो अपने आप एंट्री पास करोगे, वो एंट्री का पोस्टिंग करोगे, अपने आप एक्सपेंस अकाउंट में बैलेंस बढ़ जाएगा। सेम वे एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे तो एक्सपेंस शो डेबिट बैलेंस, तो उसको क्रेडिट करेंगे तो उसका बैलेंस उतना कम हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस एंट्री बैलेंस कम हो रहा है। आपको लग रहा है हम इनर कॉलम में लेस कर रहे हैं ना, एक्चुअली दिस एंट्री इज पास्ड इन जर्नल प्रॉपर and then you post this into the expense account, expense balance will automatically get reduced. Do you understand the impact? So there's nothing like inner column, it's all entries and posting of those entries, and the effect of that posting is the balance changes, either increases or decreases. Is that clear? Then depreciation, it's your expense, debit all expenses and losses, okay? And secondly, the value of asset decreases, so asset credit. Now what happens is, when you pass this entry, you are crediting asset. Assets show debit balance, so when you credit asset balance will reduce, it will decrease. तो आप क्या करते हो, इनर कॉलम में एसेट में से लेस डेप्रिसिएशन करके उसकी बैलेंस ऐसे कम करते हो, बट एक्चुअली वैसे कम नहीं हुई है। एक्चुअली ये एंट्री पास हुई है जर्नल प्रॉपर में, उसका पोस्टिंग हुआ एसेट अकाउंट में, एंड बिकॉज ऑफ दैट एसेट बैलेंस हैज रिड्यूस्ड। क्लियर? Yeah. Suppose at the end of the year, at the time of ledger scrutiny, you come to know that some debtors are not going to pay. Look, during the year also you need to know some is not, some people are not going to pay. So during the year you have already passed bad debts entry. So that bad debt is already appearing in your trial balance.
But at the end of the year, I told you each and every ledger account is checked. So due to this entry, bad debts balance increases. Already bad debt shows debit balance and then you further debit bad debts. So increases. And debtors में क्या हो रहा है? Debtors show debit balance, आप उसको क्रेडिट कर रहे हो तो डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा. तो आप क्या करते हो? बेड डेब्ट्स में ऐड करते हो, डेटर्स में लेस करते हो. व्हाट आप करते हो इनर कॉलम में वो एक्चुअली इस एंट्री का पोस्टिंग होता है, तो उसका अपने आप अकाउंट में इफेक्ट आता है. क्लियर? Then RDD. Now, before I proceed, the actual word used to be used should be PDD. Using the word reserve for doubtful debts is not correct. It should be provision for doubtful debts. Now, what is the difference between a reserve and a provision then? What is the difference between a reserve, a provision and a fund? बहुत ध्यान से सुनिए. When you are expecting some expense or loss in future, and for that you are keeping aside some profit to meet that future expense or loss, अगर आप अभी से प्रॉफिट निकाल के साइड में रखते हो तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोविजन. बट अगर ऐसे ही प्रॉफिट साइड में निकाल के रखा है, कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस या लॉस को मीट करने के लिए नहीं, ऐसे ही प्रॉफिट साइड में रखा है, तो यू कॉल इट अ रिजर्व. If the profit is kept aside, okay, if the profit is kept aside for no specific reason, for not specific expense or loss, just like that, some profit is kept aside, it is not given to the owner, kept aside, then it is called a reserve. But if the profit is kept aside to meet some future expected expense or loss, then it is called a provision. And if that provision, abhi ek teesri baat, if that provision is represented by an asset of equal amount, then it is called a fund. फ्यूचर में कोई एक्सपेंस या लॉस होने वाला है, उसके लिए हमने प्रॉफिट साइड में रखा है, तो उसको प्रोविजन बोलते हैं. बट जितना प्रॉफिट साइड में रखा है उतना ही पैसा हमने कहीं एसेट में इन्वेस्ट किया है, तो फिर वो प्रोविजन नहीं बोलने का, फंड बोलने का. लाइक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. अब दिमाग में क्लिक हुआ क्या बोल रहा हूं? प्रोविडेंट फंड ये वर्ड यूज किया है, तो मतलब एसेट साइड पर उससे रिलेटेड कोई एसेट है ना, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट.
वर्कर रिटायर होगा तब हमको उसको पैसे देने हैं, उसके लिए हमने प्रोविजन करके रखा है प्रोविडेंट फंड का। बट उतना पैसा अचानक बिजनेस से कैसे निकालेंगे उसको देने के लिए, इसलिए हमने पहले से इन्वेस्ट करके रखा है कि वो रिटायर होगा, ये इन्वेस्टमेंट बेच के उसको पैसा दे देंगे। तो व्हेन द प्रोविजन इज मेट बाय एन एसेट, is represented by an asset, then you call it a fund. Is that clear? And that is the reason why I said कि using the word reserve for doubtful debts is wrong. It should be provision for doubtful debt. Profit ऐसे ही थोड़ी साइड में रखा है, फ्यूचर में कुछ बेड डेब्ट्स होने वाला है उसके लिए साइड में रखा है प्रॉफिट. Yes? And when profit is kept aside for some specific future expected expense or loss, it should be called what? Provision. But ठीक है, loosely speaking, we are habituated using reserve for doubtful debts. ठीक है, so चला लेने का. But when a specific question is asked कि whether doubtful debts के लिए provision होता है या reserve होता है create, तो फिर आपको स्पेसिफिक किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर भी उस हिसाब से इंटेलिजेंटली देना है. अंडरस्टूड नाउ? नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से थोड़ा प्रॉफिट निकाल के हम प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं. सो माय एंट्री फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स is not the same as bad debts, though the effects are same. है ना, फाइनल अकाउंट्स में effects are same, add to bad debts, less from debtors. The effects may be same, but bad debts actual loss हो चुका है and provision create किया जा रहा है out of profits to meet future loss. Is that okay? Same way, provision for discount on debtors, डेटर्स को डिस्काउंट शायद देना पड़ेगा फ्यूचर में, इसलिए हम उसके लिए पहले से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से थोड़ा प्रॉफिट निकाल के प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं. देन कम्स प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स से शायद डिस्काउंट मिलेगा, ये एक्सपेंस का नहीं है, इनकम के लिए प्रोविजन है. क्रेडिटर्स को जब हम पे करेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू पे द क्रेडिटर्स, वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट डिस्काउंट. सो दिस इज अ प्रोविजन अगेंस्ट डिस्काउंट रिसीव्ड, इसलिए इसका एंट्री उल्टा हो जाएगा. इट्स नॉट प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन, इट इज प्रोविजन टू प्रॉफिट एंड लॉस. Understood? Now, there is again a dispute, and but that's not a dispute actually. ठीक है, मिल रहा नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि क्रेडिटर से डिस्काउंट मिलेगा, मिला नहीं है. मिला होता तो सीधा डिस्काउंट रिसीव्ड का एंट्री कर देते, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. Why would we have passed the entry for provision? The point is, there is a प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. अकाउंट्स में एक रूल है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. और वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंस होने वाला है तो उसके लिए पहले से प्रोविजन करने का. बट अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है या इनकम होने वाला है ऐसा लग रहा है तो उसके लिए पहले से प्रोविजन नहीं करने का. Principle of conservatism. But this is an exception to the principle of conservatism. Here it's an income for expected income for which you are creating a provision.
So this is an exception to the rule of क्या, वो principle of conservatism. ठीक है, and this is the only exception. आप इसके बाद फाइनल सीए तक कितना भी अकाउंट्स पढ़ लो, आपको कोई और एक्सेप्शन नहीं दिखने वाला है. दिस इज द ओनली प्लेस वेयर देयर इज एन एक्सेप्शन टू दैट रूल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट जाता है. बाकी ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर उसके अगेंस्ट जाता है. ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके. Then what do we have else? Basically, if you tell me goods distributed as free samples, goods destroyed by fire, these are actually rectifications, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हो गया और आपने उसकी एंट्री नहीं की है. Those are not actually adjustment entries, those are actually rectifications. कि wages paid for installation of machine debited to wages account, those are actually rectification entries. And obviously you will have to pass those when you do ledger scrutiny, you will also find errors, right? And वो errors का भी आप rectification entry करोगे. एंट्री करने के बाद उसका लेजर पोस्टिंग करोगे तो ऑब्वियसली बैलेंस या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, जो आप इनर कॉलम में एड या लेस करते हो. इज दैट फाइन? चलो, गुड्स distributed as free samples. Do you know what's the entry for this? You are distributing as free samples, so it's an advertisement expense that you are incurring. Debit all expenses. To what? To goods account. Goods का कौन सा account credit? Purchase return, sales या sales return? Correct. Purchase account. Correct, purchase account. Whenever, look, when we had purchased that goods, we recorded it as an expense, but in purchase account. जब खरीदा था तभी भी उसको एक्सपेंस ही माना था और परचेज अकाउंट में डाला था. करेक्ट? अभी भी वो एक्सपेंस है, बट अभी वो नए नाम में डालना है, एडवर्टाइजमेंट में. तो परचेज एक्सपेंस में से निकाल के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में डाल दो. अंडरस्टूड? हाँ ना तो बोलो. गुड्स withdrawn for personal use. चलो बोलो, goods are withdrawn for personal use. Drawings account debit, very good. What? Again purchases. जब खरीदा था इसको बिजनेस का एक्सपेंस मान के परचेज अकाउंट में डाला होगा, बट अब पता चला वो बिजनेस का एक्सपेंस ही नहीं, वो तो पर्सनल यूज के लिए चला गया, तो इसलिए बिजनेस के एक्सपेंस परचेज अकाउंट में से निकालना भी पड़ेगा कि नहीं? Okay, don't cry. Then say partly insured goods destroyed by fire. पार्टली इंश्योर्ड है तो थोड़ा लॉस अपने को भुगतना है, थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा. बराबर है? थोड़ा लॉस अपने को भुगतना है, तो लॉस बाय फायर डेबिट
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बाकी का इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारा डेटर बन गया। डेबिट व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, एंड गुड्स आर गॉन, अगेन वही बात, परचेज अकाउंट में रिवर्स होगा। नाउ बहुत से लोग इंश्योरेंस कंपनी की जगह पर मुझे बोल रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, उम्दा, बढ़िया, बहुत ही अच्छे। लेकिन अगर कोई मुझे ये पूछेगा कि इंश्योरेंस क्लेम कौन सा अकाउंट है, तो जस्ट नाउ आई रिप्लेस्ड इंश्योरेंस कंपनी विथ इंश्योरेंस क्लेम। So it should be representative personal account. It represents actually insurance company, which is a personal account. बट उसको हटा के उसके बदले इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट लिखा है, मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ कि नहीं? है ना? ठीक है, तो ऑल दीज आर एडजस्टमेंट एंट्रीज, ऐसे बहुत सारी हैं। ठीक है, आप पहले इतना लिख लीजिए। आफ्टर एडजस्टमेंट एंट्रीज वी विल गो फॉर क्लोजिंग एंट्रीज, और क्लोजिंग एंट्रीज वो एंट्रीज होती है विच गिव राइज टू, आई मीन विच इज एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स का एंट्री। Be quick.
I'll scroll now. As soon as an entry is passed in the journal, immediately, same day, same time, it is posted into the ledger. Now, closing entries. Okay. Now, I will write the entry. You tell me what I am doing. अब फाइनल अकाउंट्स बना रहे, अब आया मेन क्लोजिंग एंट्रीज जिससे फाइनल अकाउंट्स बनता है. आर यू लिसनिंग? ग्रेट.
फाइनल अकाउंट बन रहा है, ध्यान दीजिए। आपको मालूम है मैंने कौन सा अकाउंट क्लोज किया? परचेज रिटर्न अकाउंट क्लोज किया और उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया, ट्रांसफर। उससे क्या होगा मालूम है? परचेज अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, बिकॉज परचेज इज एक्सपेंस, इट शोज डेबिट बैलेंस। और फिर आप उसको क्रेडिट करोगे तो उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बिकॉज डेबिट बैलेंस है, आप उसको क्रेडिट कर रहे हो तो कम हो जाएगा। आप क्या करते हो? इनर कॉलम में परचेज में से लेस परचेज रिटर्न करते हो, करेक्ट? वो एक्चुअली ये जर्नल एंट्री का नतीजा है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ दिस जर्नल एंट्री। इट मींस, आई टोल्ड यू इनर कॉलम नहीं होता जर्नल में, दिस एंट्री इज पास एंड द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री इज परचेज रिटर्न अकाउंट गेट्स क्लोज्ड, and the second effect of this entry is purchase account balance decreases. जो आप इनर कॉलम में करते हो, that is actually a result of this entries posting. Okay, same way sales return account is closed, entry sales account debit to sales returns account. देखो इस एंट्री से सेल्स रिटर्न अकाउंट क्लोज हो गया और उसको हमने सेल्स अकाउंट में डेबिट किया। सेल्स इज इनकम, इनकम शो क्रेडिट बैलेंस, बट आप उसको डेबिट कर रहे हो तो सेल्स का बैलेंस कम हो गया। तो एंड में हम लोग सेल्स का बैलेंस कम करते हैं जितना सेल्स रिटर्न है उससे। ओके, देन नाउ यू टेल मी व्हाट हैव आई डन? Yes, I have closed drawings account and drawings account close करके कैपिटल के डेबिट पे डाल दिया। आपने फाइनल अकाउंट्स में कैपिटल के डेबिट पे 2 ड्राइंग्स लिखा है कि नहीं? कैपिटल अकाउंट में डेबिट पे 2 ड्राइंग्स, वो इस एंट्री का पोस्टिंग दिखाया आपने। बट पोस्टिंग करने से पहले जर्नल प्रॉपर में एंट्री तो होना मांगता है। अंडरस्टूड? नाउ अब एक एंट्री बताता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट, टू पावर एंड फ्यूल अकाउंट, टू फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट, टू कैरेज इनवर्ड अकाउंट, ठीक है, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। You know what have I done now? Just now I closed all these accounts. I closed all these accounts and I debited to trading account. When you prepare final accounts, you write all these things on the debit side of trading account. Yes or no? So what is happening is all these accounts are getting closed and trading account is debited. Understood?
तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जर्नल एंट्री पास हुई, ये जर्नल एंट्री के पास होने पर ये सारे अकाउंट क्या हो गए, क्लोज हो गए। और क्लोज करके कहां पहुंच गए, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे। आपने देखा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे ये सब अकाउंट, तो वो इस एंट्री का नतीजा है। अंडरस्टूड। अकाउंट्स ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोज। नेक्स्ट एंट्री, पहले आप एंट्री देखिए, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, और आई बेटर सेपरेट आउट द टू एंट्रीज। अब मैंने क्या किया मालूम है, सेल्स अकाउंट क्लोज किया और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे भेज दिया। आपने ट्रेडिंग के क्रेडिट पे सेल्स दिखाया है, दैट इज द पोस्टिंग ऑफ दिस एंट्री। ओके, द नेक्स्ट एंट्री इज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बताओ मैंने क्या किया, डोंट टेल मी मैंने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्लोज किया, मैंने क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ओपन किया। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट पहले से थोड़ी था, अभी हमको उसको एसेट पे लाना है। अंडरस्टूड। ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज नहीं किया है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करने से क्या ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो जाएगा? अंडरस्टूड। नाउ सी द नेक्स्ट एंट्री। What have I done here? I have closed all indirect expense accounts, all, and transferred them to the debit or profit and loss account. You must have seen all these things you have written on the profit and loss account debit side, correct? That is nothing but the posting of these entries. ठीक है? So then what next do you have? What have I done here? Accounts of all indirect incomes are closed and they are transferred to what? Credit side of profit and loss. ठीक है, अब उसके बाद एक एंट्री बताता हूं, यू टेल मी ये एंट्री काय की है? कैन एनीवन टेल मी ये एंट्री काय का है? वेरी गुड, this is the entry for gross profit.
This is the entry for what? ये एंट्री काय का है? Yes, this is the entry for net profit. तो net profit का भी जर्नल में प्रॉपर में ये एंट्री होता है. And the effect of that entry is profit and loss account gets closed and the profit gets transferred. Direct incomes you transfer to the credit of trading account. Indirect expense you transfer to profit and loss account debit side, and indirect income you transfer to profit and loss account credit side. So with this, all nominal accounts got closed and only two nominal accounts remained: trading account, profit and loss account. Then you passed entry for gross profit, so trading account also got closed. Then you passed entry for net profit, profit and loss account also got closed. So now in your books, not a single nominal account is existing. All the nominal accounts are getting closed. एक भी nominal account नहीं बचा है. अब सिर्फ क्या बचा है बोलिए? Personal accounts and real accounts बचे हैं. Yes or no? Yes or no? Yes, because while preparing final accounts, all nominal accounts got closed. All. Even trading and profit and loss account also got closed. They were also nominal accounts. They also got closed. अब सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट बचा है. एंड ये पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स डोंट गेट क्लोज्ड. भाई साहब, यस, ग्रॉस लॉस होगा तो दिस एंट्री विल बी रिवर्स्ड एंड नेट लॉस होगा तो दिस एंट्री विल बी रिवर्स्ड. नेट लॉस हो गया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस. Understood now? Now, with this, all the nominal accounts have got, I'm trying to tell you that with this, all the nominal accounts are getting closed. Now we do not have a single nominal account. We only have what accounts? Personal accounts and real accounts. And these personal and real accounts are not closed. At the end of the year, they are not closed. They are balanced. Personal account, real accounts are not closed. They are, क्या बोला मैंने? They are balanced. So they will show closing balance. Next year they will show opening balance. Nominal account will not show closing and opening balance because they will get closed while preparing final accounts. But personal accounts and real accounts close नहीं हुए, तो end of the year वो बंद नहीं हुए, तो उनमें balance दिखेगा. Balance carried down, next year balance brought down. Is that clear? फिर हम एक कागज का टुकड़ा उठाएंगे. उस कागज के टुकड़े को बीच में ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो बच गए हैं उनमें से जिनमें डेबिट बैलेंस है वो एक तरफ लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस है वो दूसरी तरफ लिखेंगे. ठीक है? और उस पेपर को हम बोलेंगे बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट, नाम देखिए बैलेंस शीट, ये वो शीट है जो ये बताता है कि कौन से अकाउंट में बैलेंस है. Which automatically means कि balance sheet में you will never see a nominal account because nominal accounts will never have a balance. So balance sheet में you will have only real account and personal accounts.
ठीक है, उसमें से ऑल दोज हु आर हैविंग डेबिट बैलेंस विल बी ऑन वन साइड विच इज द एसेट साइड, एंड क्रेडिट बैलेंस वाले विल बी ऑन द लायबिलिटी साइड. नाउ कैन एनीवन टेल मी रियल अकाउंट्स ऑलवेज शो विद बैलेंस? रियल अकाउंट्स ऑलवेज शो विद बैलेंस, डेबिट बैलेंस. और डेबिट बैलेंस है मतलब वो हमेशा एसेट पर ही दिखेगा. एंड पर्सनल अकाउंट्स कैन शो डेबिट बैलेंस, कैन शो क्रेडिट बैलेंस. तो वो एसेट पर भी दिख सकता है पर्सनल अकाउंट, जैसे डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, वो सब पर्सनल अकाउंट्स है. एसेट पर भी दिख सकता है, लायबिलिटी पर भी दिख सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उसमें डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है. अच्छा, इसका क्या मतलब निकला कि लायबिलिटी साइड पे जितने भी नाम है वो सारे कौन से अकाउंट हुए? देखो, बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट हो ही नहीं सकता. रियल अकाउंट तो हमेशा एसेट पर ही होगा. पर्सनल अकाउंट एसेट पर भी हो सकता है, लायबिलिटी पर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट हैज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. तो अभी आप दिमाग लगाओ कि लायबिलिटी पे जितने भी अकाउंट्स है वो सब कौन से अकाउंट हुए? पर्सनल अकाउंट. सो इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज अ बैलेंस शीट, तो आप बोलोगे बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट which shows those accounts which have balance. जिनमें क्लोजिंग बैलेंस है वो बैलेंस शीट में दिखेगा. नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो गया, उसमें बैलेंस नहीं होता, इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं दिखता. क्लियर? So copy this now. Closing entries.
वाह, चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।